SGCCI છે શું? ધ સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી. અમે આવું સાંભળ્યું છે કે તમારું સક્સેસ મંત્ર છે ફોકસ ઓન વન થિંગ એન્ડ પુટ ઓલ યોર હાર્ટ ઇન્ટુ ઇટ. યસ, સો હાઉ ડુ યુ અપ્લાય ધેટ ઇન ધ લીડરશિપ ઓફ સાઉથર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી? ઇટ ઇઝ અ યુનિવર્સલ ટ્રુથ કે તમે કોઈ એક કામ ઉપર ફોકસ કરો, એક જ વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો તો એના સારા પરિણામો પ્રાપ્ત થઈ શકે. એ જીવન હોય, ધંધો હોય, કળા હોય કે અન્ય કોઈ પણ વાત હોય. વોટ ઇઝ ધ સ્ટોરી બિહાઇન્ડ ધ ટેગ યુ ગોટ, ધ અનક્રાઉન્ડ કિંગ ઓફ સુરત? હું તો સર એ તો તમે શબ્દ આપ્યો છે, મેં ક્યારે એવું નથી કીધું કે હું અનક્રાઉન્ડ કિંગ ઓફ ધ સુરત છું. आपको जो लोगों ने टैग दिया था बहुत पहले और अभी भी शायद हाँ, दिया वो ये इसलिए था कि मैं 20 साल मैंने एक चक्री शासन किया था इस शहर पे, 1905 से लेकर 2015 तक, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल सूरत चलाता था. कभी मैंने येलो जर्नलिज्म नहीं किया, कभी किसी को डराने का धमकाने का काम नहीं किया. जो मुझे लगा और जो हो रहा है वही मैंने लोगों को दिखाया, इसलिए मेरी विश्वसनीयता का अंक बहुत बढ़ गया. और इसीलिए सरकार भी मैं जो कहती थी वही करते थे. अगर मैं चाहता कि ये मर्डर हुआ है और मर्डर के पीछे जो भी कोई है इसके प्रति थू थू कराना मेरा काम है, तो मैं ऐसी भाषा बोलता था एक जमाने में कि पूरा शहर मेरे साथ आ जाता था. जो मैं कहता था वही लोग करते थे. ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे लोगों ने देखे हैं. इसीलिए किसी ने मेरे को बोल दिया अनक्राउन्ड किंग ऑफ द सिटी ऑफ सुरत. તો આપણે પહેલા સ્ટાર્ટ કરીએ. SGCCI છે શું? John, thank you very much for giving me this opportunity to introduce my organization, the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry. इसकी એની જે સ્થાપના છે તે 1940માં થઈ હતી અને 16 સભ્યોએ ખાલી આ સંસ્થાની શરૂઆત કરી હતી અને કાળક્રમે અલગ અલગ ઓફિસ અલગ અલગ જગ્યા ઉપર ડેવલપ કરતા કરતા છેલ્લે ઘણા વર્ષો સુધી સમૃદ્ધિ નાનપુરા ખાતે આપણે સ્થાયી થયા હતા. પણ કોરોના જેવો સમાપ્ત થયો અને વધારે જગ્યાની જરૂરિયાત જણાતા અત્યારે આ સંહતિ બિલ્ડિંગ સંસ્થાના સુરત ઇન્ટરનેશનલ એક્ઝિબિશન એન્ડ કન્વેન્શન સેન્ટર પ્રિમાઇસીસ, જે SGCCI રોડ તરીકે પ્રખ્યાત છે, એ રોડ પર આપણે જે પ્રિમાઇસીસ છે એ પ્રિમાઇસીસની અંદર 7 માળના બિલ્ડિંગની અંદર ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર અને 6થા ફ્લોર ઉપર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ કાર્યરત છે. તો અમે આવું સાંભળ્યું છે કે તમારું સક્સેસ મંત્ર છે ફોકસ ઓન વન થિંગ એન્ડ પુટ ઓલ યોર હાર્ટ ઇન્ટુ ઇટ. યસ. સો હાઉ ડુ યુ અપ્લાય ધેટ ઇન ધ લીડરશિપ ઓફ સાઉથર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી? બહુ સ્વાભાવિક વાત છે. આ કોઈ મારું ટ્રુથ નથી, મારું સત્ય નથી. ઇટ ઇઝ અ યુનિવર્સલ ટ્રુથ કે તમે કોઈ એક કામ ઉપર ફોકસ કરો, એક જ વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો તો એના સારા પરિણામો પ્રાપ્ત થઈ શકે. એ જીવન હોય, ધંધો હોય, કળા હોય કે અન્ય કોઈ પણ વાત હોય. કારણ કે સંપૂર્ણ સમય તમે એક જ વસ્તુનો વિચાર કરતા હો અને એક નક્કી કરેલા ધ્યેય ઉપર આગળ વધતા હો, એવા સંજોગોની અંદર ફોકસ એ ચેમ્બરને પણ એટલું જ લાગે વળગે છે. આ વર્ષે મેં નક્કી કર્યું હતું કે ભાઈ આ વર્ષે ચેમ્બર સિવાય બાકીની અન્ય પ્રવૃત્તિઓ પર ઓછું ધ્યાન રાખવું છે. હું ઘણી બધી સંસ્થાઓમાં સંકળાયેલો છું, પણ આ 365 દિવસ ડેડિકેટેડ ટુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અને એ પ્રમાણે અત્યારે કામ કરતો જાઉં છું અને હું માનું છું કે આ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને કારણે જે ઈચ્છિત પરિણામો મેં પ્રાપ્ત કર્યા છે અને હું હજુ પણ જે કંઈ બાકી છે એ પ્રાપ્ત કરીશ. તો સુરતના આ ટ્રાન્સફોર્મેશન હતું કે પહેલા બહુ ડર્ટી સિટી કહેવાતી હતી, હવે ત્યાંથી આમ હવે સુરત જે છે એમાં તમારું શું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે? સુરત ઇન 1994 સો કોલ્ડ પ્લેગ અને ધ ડર્ટીએસ્ટ સિટી ઓફ ધ વર્લ્ડ, એની પાછળની પણ એક કહાની છે. એને લંબાણથી હું નહીં કહીશ, પરંતુ આ પર્ટિક્યુલર સમયગાળાની અંદર અમે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સમાંથી વિડીયો કેસેટ બનાવતા હતા એજ્યુકેશનલ, કે જેની અંદર અમે લોકોને ઉપદેશ આપતા હતા કે પ્લેગમાં શું કરવું જોઈએ અને પ્લેગમાં શું ન કરવું જોઈએ. એ કેસેટ પ્રખ્યાત થઈ એટલે એની બીજી આવૃત્તિ કરી. તેમાં અમે ભાગતા લોકો, પછી જે લોકો બહારથી પાછા માર ખાઈને આવતા હતા તેવા લોકોના ઇન્ટરવ્યૂ, સુમસામ રસ્તાઓ, બંધ સિનેમાઓ અને જે વિસ્તારમાં ઘટના બની હતી મોતની, એ વિસ્તારોની અંદર સન્નાટો, આવી એક બીજી કેસેટ બનાવી. ત્રીજી કેસેટ બનાવી. એ ત્રીજી કેસેટની ઇતિહાસ એવો છે કે ડૉક્ટર બિપિનભાઈ દેસાઈ, ડૉક્ટર નૈનેશભાઈ પરીખ અને આ પ્રકારના કેટલાક મિત્રોએ આ પ્લેગ છે એવો ડાઉટ ઉઠાવ્યો, શંકા કરી અને એના ઉપર એ લોકોએ પત્રકાર પરિષદ કરી. એ પત્રકાર પરિષદમાં હું પણ ઉપસ્થિત હતો અને એ પત્રકાર પરિષદમાં એમણે એમ કીધું કે વી ડાઉટ ઓન પ્લેગ. વોઝ ઇટ અ પ્લેગ? તો અમે એવું કહીએ છીએ કે ના, એ પ્લેગ નથી. તો શું છે? તો એમણે
જર્નલ્સમાંથી જે કંઈ સિમ્ટન્સીસ બહાર આવ્યા તેના આધાર ઉપર કીધું કે આ હંટા વાયરસ નામની મહામારી છે. પત્રકાર પરિષદ સમાપ્ત થઈ. પછી મેં એમને કીધું કે સાહેબ આવું તમે કહેશો તો કોઈ માની નહીં લે. તો મને કે તો શું કરવું જોઈએ? મેં કીધું ચાલ લેટ્સ ગો ટુ ધ પ્લેસ કે જ્યાં આ બન્યું હતું. અને એ પ્લેસ એટલે કતારગામ, બેટ, ડભોલી, સિંગણપુર, કે જ્યાં આ કહેવાતા પ્લેગના 1 મહિના પહેલા રેલ આવી હતી. અને એ રેલને કારણે જે ગંદકી થઈ હતી એ ગંદકીમાંથી આ ફેલાયેલી મહામારી હતી. અને ચેમ્બરમાંથી અમે આ કેસેટના સંદર્ભની અંદર તૈયારી શરૂ કરી. ચેમ્બરે મને ના કહી કે ના, આપણે કોન્ટ્રોવર્સીમાં પડવું નથી. એટલે એ કેસેટ મેં જાતે પ્રોડ્યુસ કરવાનું નક્કી કર્યું. અમે એ ભોગ જેટલા બનેલા હતા એ સ્થળો પર ગયા અને ત્યાંથી પછી સંશોધન પરથી નક્કી 100% કરી લીધું કે ના, આ પ્લેગ તો નથી જ. કારણ કે જે પ્લેગના સિમ્ટન્સીસ હતા એને મળતા ઝૂલતા હતા પણ સંપૂર્ણ મળતા નહોતા. ખાસ કરીને રેટ ફોલિંગ એટલે કે ઉંદર મરવાની ઘટના. એક પણ ઉંદર મરેલો નહોતો મળ્યો. અને પ્લેગમાં ઉંદર મરે એ જર્નલ કે છે. વિશ્વમાં જ્યાં જ્યાં પણ પ્લેગ ફેલાયો હતો તેની અંદર આ સિમ્ટન્સીસ હતા. અને એથી અમે જે કેસેટ બહાર પાડી તેનું નામ આપ્યું નો પ્લેગ. એ અમે નહોતું આપેલું. અમે તો ટાઇટલ આપેલું હતું કે વોઝ ઇટ અ પ્લેગ. પણ જેને તો અમે રેકોર્ડિંગ કરાવતા હતા એ રેકોર્ડિંગના મિત્રને એવો કંઈ ખ્યાલ નહોતો એટલે એને એમ ટાઇટલ મારી દીધું નો પ્લેગ. હવે આ નો પ્લેગને કારણે સમાજની અંદર એ કેસેટ રાતના ફરવા માંડી કેબલ ઓપરેટર થકી અને લોકોના ઘર સુધી પહોંચવા માંડી, જોવા માંડી. તો કદાચ પ્રિન્ટ મીડિયાના મિત્રોને તે વખતે એવું લાગ્યું કે આ તો બહુ મોટો ગુનો અને અપરાધ કર્યો છે. એટલે એ લોકોએ ટાઇટલ આપ્યું કે શા માટે નિખિલ મદ્રાસીને અંડર એપિડેમિક કંટ્રોલ એક્ટ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત એમને ધરપકડ કેમ નહીં થવી જોઈએ. અને બીજે દિવસે પોલીસ આવી. પોલીસ મને અટક કરી. એ ધરપકડ અને અટક વચ્ચે પણ એક ફરક છે. અટક એટલે એક ચોક્કસ સમય માટે પૂછપરછ માટે એક પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિને પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈ આવો અને પૂછપરછ કરી. કેસેટ જોઈ પણ છેલ્લે અંતે કેસેટમાં પણ એવું કંઈ દેખાયું નહીં કે જેને કારણે મારો કોઈ ગુનો સાબિત થતો હતો. પણ એક પર્ટિક્યુલર 5 કલાકના સમયગાળામાં જે મને જ્ઞાન લાગ્યું અને તેને કારણે એમ થયું કે મારે આ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવું જોઈએ કે જેથી હું લોકોના દીવાનખાના સુધી પહોંચી શકું, લોકોના રસોડા સુધી પહોંચી શકું. અને એટલે ચેમ્બર પરથી આ કેસેટની પ્રેરણા લઈને મેં મારું પ્રાઇવેટ પરિવાર વિડીયો મેગેઝિન જે ઓલરેડી ચાલતું જ હતું નરેશભાઈ કાપડિયા સહિતના મિત્ર દ્વારા, એમાં મેં એન્ટ્રી લીધી. ત્યાર પછી 15 ઓગસ્ટ 1995ના રોજ અમે ડિમોલિશનનો માટેનો એક એપિસોડ તૈયાર કર્યો 15 મિનિટના ન્યૂઝનો રોજે રોજ. કારણ કે પ્લેગ વખતે જે ઘટના બની સરકાર સતર્ક થઈ ગઈ. સુરત આખા વિશ્વની અંદર બદનામ થઈ ગયું હતું. એ બદનામ છબીને ભૂસવાની વાત હતી. અને એટલે એ લોકોએ નક્કી કર્યું હતું સરકારે કે જેટલા બી ગેરકાયદેસર દબાણો છે એ ગેરકાયદેસર દબાણોને દૂર કરવા. લાઈન દોરીનો અમલ નહીં થતો તો લાઈન દોરીનો અમલ કરાવવો. ન્યાયતંત્રને કીધું કે તમે સ્ટે નહીં આપતા. મીડિયાને કીધું કે તમે અમારી સાથે રહો કારણ કે આપણે લોકોને સમજાવવું છે કે આ શહેરના હિતમાં તમારો ભોગ જરૂરી છે. અને પબ્લિક આ બધાએ સાથે મળીને એક મુવમેન્ટ શરૂ કરી. એ મુવમેન્ટમાં અમારો બહુ મોટો ફાળો હતો કારણ કે અમે રોજ રાત્રે જે ન્યૂઝ બતાવતા હતા તેને કારણે લોકોના મનની અંદર અમે એવું સાબિત કરવામાં સફળ થયા કે તમારો સહકાર, તમારો સાથ, ભલે આ તૂટે છે તમારી જ ઇમારત, પણ આ શહેરના ઇતિહાસમાં, આ શહેરના વિકાસમાં આ જરૂરી છે. અને તેનાથી એક કાયાપલટની શરૂઆત થઈ. અને એ કાયાપલટની શરૂઆત થઈ તો આજે 2025માં આપણે સુપર સ્વચ્છ લીગ સર્વેક્ષણની અંદર પણ આખા દેશની અંદર સ્વચ્છતામાં પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત કર્યો છે. તો આ આખો ઇતિહાસ ચેમ્બર દ્વારા એક જે પ્રેરિત થયેલી વાત હતી તેને આટલી આગળ 20 વર્ષ સુધી મેં ચેનલ ચલાવી. અને તેને કારણે ચેમ્બરમાં મારી પ્રતિષ્ઠા વધી અને અલ્ટિમેટલી આઈ હેવ ડિસાઇડેડ કે મારે ચેમ્બરની અંદર પ્રમુખ બનવું છે. એટલે ઉપપ્રમુખમાં ઊભો રહ્યો, ચૂંટણી થઈ, ચૂંટણીમાં જીત્યો અને અલ્ટિમેટલી હું પ્રમુખ બન્યો. આ મારી જર્ની. सो एज ए ट्रेनर आपने 300 से ज़्यादा वर्कशॉप्स करी आज तक, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग और ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे. तो ऐसी कोई एक हैबिट जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है जो हर जन को डेली करनी ही चाहिए? वास्तविक जीवन जीना पसंद करो. रियलिटी में आप जैसे हो वैसे बनकर रहना पसंद करो. आपका स्वभाव बदलने की जरूरत नहीं है. आपको आपका जो स्टाइल है, जो सिस्टम है वो बदलने की ज़रूरत नहीं है.
मैं अगर जान से भी बात कर सकता हूं तो मैं छोटे से छोटे आदमी के साथ भी बात कर सकता हूं। मैं अपनी ओरिजिनलिटी खोना नहीं चाहता। मैं ऐसा समझता हूं कि चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट मैं 1 ही साल, और मुझे पता है कि 1 साल के बाद जो प्रतिष्ठा मुझे मिली है अभी, वो प्रतिष्ठा हुद्दे के नाते अभी रहने वाली नहीं है। जो कार की सगवड़ चेंबर ने दी है वो कार नहीं है, जो ड्राइवर हमको दिया है वो नहीं है। ये सभी को दिमाग में रखना चाहिए कि ये सब आज है, कल नहीं भी हो सकता है। अगर वो मानसिकता से आप जीना पसंद करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे, और ऐसा मैंने किया है। मेरे द्वार सभी के लिए खुले हैं। मेरी कैबिन पे मैंने लिखा है कि इस कैबिन के अंदर आने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी परमिशन। किसी को भी अंदर आने के लिए कोई भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो जो रोज की रोज बात है, तो बस जो आप हो वो रहो, नंबर 1। नंबर 2, वर्तमान में जियो, पास में मत देखा करो। पास में मैंने क्या गलती की, मेरे क्या अचीवमेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे साल में तो ये काम हुआ था, वो काम हुआ था। भाई भूल जाओ, अब आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और ज्यादा भविष्य को गोल रखना चाहिए, लेकिन भविष्य की चिंता मत करो। कल क्या होने वाला है इसकी चिंता में हम चीता खड़ी कर देते हैं अपने की, वो नहीं करना चाहिए। और पास में जियो, पास में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उसको एनकैश करो। जितनी भी ताकत भगवान ने हमें दी है उनका यूटिलाइज करो। ये मेरा जीवन मंत्र है। और एक 4 शब्द, भाव से, थाव से, चाल से અને ગમશે। જો આ 4 શબ્દને તમે જીવનમાં અપનાવી લેશો તો તમે જે કંઈક અચીવમેન્ટ પ્રાપ્ત કરવા માંગશો તે અચીવમેન્ટ તમને પ્રાપ્ત થશે। સો અભી તમે બહુ બધી વસ્તુઓ કરો છો, પેજ 3 મેગઝીન થઈ ગઈ અને એસજીસીસીઆઈ થઈ ગયું, તમારું ખુદનું પરિવાર છે, તો આવી કઈ એક્ટિવિટીઝ તમે કરો છો કે તમે બર્નઆઉટ નહીં થાય અને આવું નહીં હોય કે હવે હું થાકી ગયો છું? થાકવાનો પ્રશ્ન નથી। જીવનની અંદર જ્યાં સુધી ઉત્સાહ છે, એટલે ટૂંકમાં કામને ગમતું કરો। તમે જે કંઈ કામ કરો છો તેમાં તમે તમારું 100% આપવાની કોશિશ કરો। આજે એસજીસીસીઆઈના પ્રમુખનો રોલ છે, તો એ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પાવરનો રોલ છે, એમ કહી શકો, ખોટું નથી। એમાં કળા કૌશલ્યની કોઈ જરૂર નથી। એમાં ફક્ત ને ફક્ત તમારી વહીવટી તાકાત કેટલી છે એના ઉપર તમારું ડિપેન્ડન્સ છે। તો હું યુટિલાઇઝ કરું છું। હું જ્યારે લખવા બેસતો હોઉં છું પેજ 3 મેગેઝિન માટે, ત્યારે હું જાતે નથી લખતો, હું મારી સેક્રેટરી પાસે ટાઈપ કરાવતો હોઉં છું। તો ત્યારે આખું મારું મગજ સહિત આખું શરીર એ ઇન્વોલ્વ થઈ જાય છે, અને એ વ્યક્તિ જાણે હું હોઉં તે રીતે હું એને આત્મસાત કરવાની કોશિશ કરતો હોઉં છું। ને એટલે હું જ્યારે પણ લખું છું એ વ્યક્તિને માટે, ત્યારે એ વ્યક્તિનો ચહેરો મારી સામે હોય છે, એને કરેલા કાર્યો મારી સામે હોય છે, અને તેના કારણે એ વ્યક્તિ વિશેષનું વર્ણન હું બહુ સારી રીતે કરી શકું છું। હું અત્યારે તમારી સાથે વાત કરું છું ત્યારે પણ જીવનની બાકીની બધી વિડંબણાઓ છોડીને માત્ર એક જ ફોકસ કે મારે સારો સંદેશો સમાજને પહોંચાડવો છે, ને એટલા માટે હું સંપૂર્ણપણે તમારી સાથે ઇન્વોલ્વ છું, અને એ જ કદાચ તમને જીવનમાં સફળતા પાવે છે। હવે what routine helps you maintain motivation and amid to सूरत competitive business scene? सूरत में जो इतना कंपटीशन है उसमें आप कैसे अपने आप को प्लेस करते हो और उसमें मदद करते हो? देखो, मैं कोई बड़ा उद्योगपति नहीं हूँ, न तो मैं बड़ा कोई बिजनेसमैन हूँ। मैं एम ए सर्विस सेक्टर पर्सनालिटी। और आप जो इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इंडस्ट्री की समस्या मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और इसीलिए इंडस्ट्री की समस्या का समाधान पाने की कोशिश करता हूँ। गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन करते हैं हर एक इंडस्ट्री का, उसको समझने की कोशिश करता हूँ कि गवर्नमेंट की ये प्रोविजन है, इससे क्या फायदा होगा, क्या गैर फायदा होगा। अगर गैर फायदा हो रहा है तो उसकी किस तरह से प्रेजेंटेशन करने की, ताकि सरकार को हम समझाने में सफल हो सके कि ये आपकी गलत प्रोविजन है या आपकी अच्छी प्रोविजन है। और अगर बिजनेस की बात करूं तो बदलाव का स्वीकार करना सीखो। परिवर्तन इज इनएविटेबल। परिवर्तन एक कुदरत का अपरिवर्तनशील नियम है। अगर चेंज को स्वीकार नहीं करोगे तो आप फेंक दोगे। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी का जितना भी आविष्कार मैंने किया है, वो शायद इस उम्र के लोगों में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इतना स्वीकार किया है। यंग लोगों के लिए भी मैं यही बोलता हूँ, परिवर्तन का स्वीकार करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी जब आया, मुझे बहुत दुख हुआ था कि अरे यार, ये तो मेरी मौलिकता को खत्म कर देगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं भी करूंगा इसका यूटिलाइजेशन, फिर भी वो तो आगे बढ़ता ही जाएगा, फिर मैं उसके ही बस में क्यों ना बैठ जाऊं। तो क्या हुआ कि मुझे अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ मेरे को दे देता है। लेकिन वो देता है तो उसके ऊपर काम तो मेरे को ही करना पड़ेगा ना। दैट इज द थिंग। यानी एआई का यूटिलाइजेशन करके ज्यादा काम किस तरह से करें, ज्यादा प्रोग्राम किस तरह से बनाए, ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कैसे करें,
ये सब चीज़ें मैं करता हूँ, यानी कि परिवर्तन का मैं स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं बिजनेसमैन को यही बोलता हूँ, रूटीन में से बाहर आइए, मेरे को ही वाउचर चेक करना, मैं ही बिल चेक करूँगा, मैं ही बैंक अकाउंट हैंडल करूँगा, मैं ही मेरी सिग्नेचर से पेमेंट करूँगा, वो ज़माना गया। अब मैनेजर, लीडर और एंटरप्रेन्योर का तीन का जो भेद है वो उसे समझने की ज़रूरत है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो सिर्फ सपने देखता है और सपना बेचने की कोशिश करता है। किसके साथ? अपने लीडर्स के साथ। लीडर्स कौन होता है? जो 5-6 लोग 7 लोग होते हैं, कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो, कोई फाइनेंस हेड हो, कोई मार्केटिंग का हेड हो, कोई सेल्स का हेड हो, वो सब 5-6-7 लोग मिलकर वो एंटरप्रेन्योर ने जो बात बताई उसको समझने की कोशिश करके वो ध्येय पर किस तरह से पहुंचना उसका मार्ग तय करता है। और वो किससे काम करवाता है? मैनेजर से, जो आम लोग होते हैं। और मैनेजर को सिर्फ काम ही करना होता है, जो हुक्म दिया उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। ये 3 शब्दों का भेदभाव आप समझोगे, यू विल गेट अ सक्सेस इन द लाइफ। व्हाट वाज द लव यू जिंदगी क्लब जो आपने पेज 3 के साथ चालू किया? लव यू जिंदगी क्लब एक मेरा स्वप्न है, स्वप्न था, स्वप्न रहेगा। क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद हमें कुछ नया चाहिए। अब लोग बोलते हैं कि अरे यार 60 साल हो गए, अभी जिंदगी में साल कितने बचे। बात तो सही है, लेकिन उसको पॉजिटिवली क्यों न लें कि जितने बचे इतना आराम से, उत्साह से, जोम से, ताकत से, धगस से कुछ कर दिखाने की तमन्ना से अगर बिताएंगे तो मजा आएगा जीवन जीने का। भगवान ने जीवन एक ही बार दिया है और हम जब जन्म लेते हैं तब भी हमारे शरीर पे कुछ नहीं होता है, जब हम मृत्यु होता है तभी भी कुछ नहीं होता है। ये 2 शब्दों के बीच का जो सत्य है उनका नाम जीवन है। और वो जीवन जीना ये मेरा अधिकार है, मेरा हक है, क्योंकि भगवान ने जन्म दिया है। 60 साल हो गया तो ये तो उम्र का तकाजा है, लेकिन इनके बाद क्यों जिंदगी ना हो। इसके बाद अगर पैसा हो, आराम कीजिए, आराम के साथ साथ अपनी अच्छी, जो हमें अच्छी लगती है ऐसी प्रवृत्ति करो, सामाजिक सेवा करो, घूमो फिरो, वॉकिंग करो, अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाओ। तो ये मोटिव है जीवन का। तो वो मोटिव को साकार करने के लिए मैंने ये लव यू जिंदगी क्लब शुरू की। हमने अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाने शुरू किए ताकि ये जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 60 साल के ऊपर के लोग ही इसमें दाखिल हो सकते हैं, कोई भी दाखिल हो सकता है, लेकिन 60 साल के ऊपर वाले को थोड़ा ज़्यादा एंटरटेन चाहिए अपने आप को। तो वो एंटरटेनमेंट की एक्टिविटी के लिए मैंने ये लव यू जिंदगी क्लब शुरू की और वो चल रही है। आपको क्या इंस्पिरेशन मिला था पेज 3 मैगजीन को चालू करना 2021 में एज अ प्लेटफॉर्म फॉर बिग मैटर्स ऑफ स्मॉल पीपल एंड स्मॉल मैटर्स ऑफ बिग पीपल? यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं छोटी छोटी लोगों की बड़ी बड़ी बातें लिखता हूँ और बड़े बड़े लोगों की छोटी छोटी बातें लिखता हूँ। बड़े बड़े लोगों की छोटी का क्या मतलब ये कि जो सक्सेसफुल गए हैं उन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए और वो किस तरह से जीवन बिताते हैं, वो अपने पोती पोते के साथ किस तरह से टाइम बचाता है, वो उनके लिए छोटी छोटी बात होती है। वो उसकी खाने की सिस्टम क्या होती है, वो लारी पे खाते हैं कि नहीं खाते हैं, क्योंकि वो ही और सी कैन अफोर्ड 5 स्टार फैसिलिटी, 5 स्टार लंच डिनर, बट स्टिल इफ ही और सी इज ईटिंग ऑन लारी पर अगर खा रहा है तो ये उनके लिए बहुत बड़े आदमी की छोटी बात होती है। उसको हाईलाइट करना जरूरी है ताकि लोगों को मैसेज जाए कि यार इतना बड़ा आदमी अगर लॉरी पे खा सकता है तो मैं क्यों नहीं खा सकता हूँ, आम लोगों के साथ मिलकर मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकता हूँ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लॉरी की आइटम, फूड आइटम होटल से भी ज़्यादा अच्छी होती है। और छोटे छोटे लोग की बड़ी बात की अगर बात करता हूँ तो कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, फिर भी जीवने का उनका जो उत्साह है वो हमें बहुत सारा मैसेज दे जाता है। एक आदमी के पास 1 लाख रुपया हो और उसमें से वो 10,000 का डोनेशन करता है, और एक आदमी के पास 1 करोड़ हो फिर भी वो कोई डोनेशन नहीं करता है, तो वो जो छोटा आदमी है उसका डोनेशन ज़्यादा प्रभावशाली है। तो ऐसे हेतु से मैंने ये लिखना शुरू किया। और उस वक्त क्या करें, चैनल सूरत मेरी 15-20 साल मैंने चलाई, 95 से 2015 तक। बाद में मैंने समय के हिसाब से उनको बंद करने का निर्णय किया। और बाद में क्या करना है, मैंने बोला हम मीडिया में हैं, मीडिया में ही रहेंगे। तो मैंने ये शुरू किया कि भाई सबके लिए लिखना शुरू करो।
उनकी अच्छी बातें ही मैं लिखता हूँ, बुरी बातें नहीं लिखता हूँ। अच्छी बातें इसलिए लिखता हूँ ताकि उनके जीवन पे से कोई संदेश किसी और को मिले और वो संदेश में से कुछ पाने की वो कोशिश करे। तो इसीलिए ये पेज 3 मैगजीन मैंने शुरू किया और सक्सेसफुली रनिंग। लेकिन बाद में अब पेज 3 पॉडकास्ट भी मैंने शुरू किया है। पॉडकास्ट यानी कि टीवी इंटरव्यू जो अभी आप कर रहे हैं। हाँ। एक जमाने में मैं एक कैमरा से करता था, 20 साल तक मैंने ये किया, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी रील्स बनती है, उस जमाने में रील्स नहीं बनती थी। अभी जब मैं बोलता हूँ वो सब नीचे लिखते भी हैं आप लोग, वो भाषा भी उसके लिए अलग अलग होती है। मैं अगर हिंदी में बोलता हूँ तो नीचे कैप्शन इंग्लिश में हो सकता है ताकि बाकी के जो लोग हिंदी नहीं समझते वो भी समझ सके। तो ये एडवांसमेंट आया, तो ये एडवांसमेंट पे मैंने काम करना शुरू किया है और यही मेरा जीवन मंत्र है। सो एज अ चीफ एडिटर, व्हाट्स योर प्राउडेस्ट स्टोरी आपने जो आज तक फीचर करी अपने पेज 3 मैगजीन पे, एंड आप इसको आगे जाके कैसे बड़ा करना चाहते देखो, हर स्टोरी मेरे लिए एक समान है, क्योंकि हर एक बंदे के पास अपनी एक कहानी है। क्योंकि उनका सभी का जो लोगों का भी मैं करता हूँ उनकी संघर्षपूर्ण कहानी ही होती है। और वो संघर्षपूर्ण कहानी जब जब भी बोलते हैं तो उनके आंखों में हर्ष के आंसू होते हैं, दुख के आंसू भी होते हैं, क्योंकि वो पास्ट में चला जाता है। 20 ईयर्स बैक, 30 ईयर्स बैक, जब उनकी परिस्थिति ऐसी थी, खाने खाने का सासा पड़ता था। जब वो बातें याद करके वो मेरे साथ बात करता है तो पूरा एक रील, एक फिल्म उनके सामने से निकल जाती है। तो ये मेरे लिए बहुत आनंद की बात होती है कि किसी को मैं भूतकाल में ले जाऊं और अब उसकी सक्सेस की बात अगर मैं लोगों के सामने पेश करूं तो उसमें किसी अन्य लोगों को प्रेरणा मिल सकती है। कई ऐसे लोग हैं जो देवा में, मतलब जीवन में आर्थिक समस्या से बहुत घिरे थे, इसमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन जिस तरह से मैंने आर्थिक समस्याओं का समाधान प्राप्त करने की कोशिश की, जिस तरह से मैंने, मेरी जिंदगी उस समय इतनी खराब हो चुकी थी, इसमें से जिस तरह से मैंने रास्ता निकाला, अगर ये बात मैं लोगों के सामने पेश करता हूँ तो किसी और को भी प्रेरणा मिल सकती है और वो प्रेरणा में से वो कुछ पा सकता है। यही मेरा जीवन संदेश है। अब हाउ डिड SGCCI शेप यू टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड डेवलप योरसेल्फ टू होल्ड ऑन टू दिस प्रेसिडेंसी? ऐसा बेटा, ऐसा है कि SGCCI हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जब आपको सत्ता मिलती है, पावर मिलती है, तो बोली, शैली, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ये ऐसे ही बढ़ जाता है। क्योंकि आपके पास सत्ता होती है, आपके पास 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग आसपास अपने गिरे हुए हैं। मुझे फिर आना चाहिए कि मैं ये 70 लोगों के पास क्या काम करवाऊं, कैसे काम करवाऊं। तो ये SGCCI के प्रेसिडेंट बना तो मुझे पता चल गया कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अगर ये मैं खुद करने जाऊंगा तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन करने से मुझे फायदा हो सकता है। और मैंने किया, सबके विश्वास किया। विश्वास बहुत बड़ी बात है। अगर मैं हर बार ये सोचता रहूंगा कि ये सही नहीं करेगा तो नहीं, ये तो वाला जाने दो, हम मान लेते हैं कि वो अच्छा ही करेगा। तो ये मैंने किया और मैं सफलता की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। What would be a few pointers you would like the young leaders and entrepreneurs to understand? और आपकी जो भी आज तक की जर्नी है उसमें से आप ऐसी कौन सी लर्निंग उनको बताना चाहोगे कि वो अगर अभी से इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनकी लाइफ आगे जाके सफल है? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कुछ अलग सोचना शुरू करो। जो पापा ने किया है वो आप मत करो। पापा ने किया वो सही नहीं था ऐसा मेरा कहना मतलब नहीं है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मतलब परिवर्तन का झड़प से स्वीकार। पापा को हमें दिखाना जरूरी है कि ये ChatGPT का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे अपने आप में तो ये विकास की गति आपकी रुक जाएगी। हम लोग हमेशा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन सोचते हैं। पहले ज़मीन लो, ज़मीन पे इमारत बनाने के लिए रेती कपची सीमेंट लो, रेती कपची सीमेंट लेने के बाद फ्लैट बनाओ, कमर्शियल दुकान बनाओ, बाद में कलर करो, बाद में इंटीरियर करो और बाद में मार्केट में जाओ। ये होता है फॉरवर्ड थिंकिंग। कहीं रिवर्स थिंकिंग भी हो सकता है, ऐसा कि रिलायंस, विमल उनकी प्रोडक्ट थी कपड़े की। कपड़ा किससे बनता है? यान से। उन्होंने यान बनाना शुरू किया। यान किससे बनता है? चिप्स, तो उन्होंने चिप्स बनाने की शुरुआत की। चिप्स किससे बनता है? तो क्या पेट्रोलियम, तो उन्होंने पेट्रोलियम की रिफाइनरी डाल दी। अब पेट्रोलियम किससे बनता है? क्रूड से। लेकिन कहीं क्रूड वो खरीद नहीं सके, नहीं तो वो भी अगर खरीद लेते तो दे में भी ऐसे भी वो किंग है पूरे देश के। लेकिन वो किंग और ज्यादा बन सकते हैं, क्योंकि जिसके हाथ में तेल उसी के हाथ में दुनिया। तो ये हुआ रिवर्स इंटीग्रेशन। मैंने पहले बताया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो रिवर्स इंटीग्रेशन क्या होता है? एक अलग सोच होती है। एक समझ लो कि एक पापड़ बनाने की फैक्ट्री है। तो पापड़ बनाने की फैक्ट्री में इसके लिए क्या चाहिए? दाल चाहिए,
दाल आप बल्क में भी खरीद सकते हो ताकि आपको कैश फ्लो अगर आपके पास है तो सस्ती गिरे। लेकिन अगर दाल की खेती हम खुद कर ले तो कितना सस्ता पड़ेगा। तो पहले पापड़ आया, पापड़ के नीचे क्या आया, दाल आई, दाल के नीचे क्या आया, खेती आई। लोग खेती नहीं करते, लोग बाजार में से, ओपन हाउस में से दाल को खरीदते हैं। लेकिन हम ही दाल पकाए तो नफा उनका जो था उसको बीज का वो निकल जाएगा, तो आपकी कॉस्टिंग नीचे आएगी। कॉस्टिंग नीचे आई तो आप सस्ते में बेच सकोगे। अपने कॉम्पिटिटर को भी चित्त करने के लिए जो चीज अगर लिज्जत जैसी ब्रांड देती है वही चीज अगर 50 रुपये कम में 1 किलो पे हमने भेजना शुरू किया लोगों को, तो लोग हमारा लेंगे। टेस्ट तो वही है, लेकिन थिंकिंग हमने अलग की, हम पैसा कमाएंगे। तो ये यंग जनरेशन को सिर्फ करना है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। और पढ़ाई जितना पढ़ सको इतना पढ़ो, इग्नोर मत करो एजुकेशन को। कई जमाने में लोग ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि देखो ये तो लास्ट बेंच पे बैठता था, कहाँ पहुंच गया। अरे वो भाई 10 में से 1 लोग, बाकी 100 में से 99 की सक्सेस स्टोरी होती है कि उनका एजुकेशन कितना बड़ा है। ये डायमंड के जितने भी अच्छे उद्योगपति है ना, जिनके 4 भाइयों के मिला के 12 धोरण होते हैं, लेकिन वो ऐसा संदेश कभी नहीं देना पसंद करेंगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को और उसकी नेक्स्ट जनरेशन को वो लोग विदेश में ही पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप विदेश में सब पढ़ो और पढ़ाओ, इंडिया में भी अभी तो बहुत अच्छा एजुकेशन है, लेकिन पढ़ाई इज मस्ट। एजुकेशन को इग्नोर मत करो। As you're an active member in the society, managing many different initiatives like business, presidency, Page 3 magazine, how does your schedule look like throughout the day? सुबह से रात तक आप क्या क्या चीजें करते हैं? देखो ऐसा है कि शेड्यूल में 3 चीज होती है। एक पर्सनल कंफर्ट, दूसरा होता है बिजनेस, तीसरा होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आप लगाव रखते हो वो, एंड फैमिली टाइम। अब उनको एडजस्ट करना सीखो। मेरी रात कब होती है मुझे पता नहीं है। 12 बजे के बाद रात को पहले, इसके पहले मैं कभी सोता नहीं हूँ, लेकिन कोई कंपल्सन नहीं है कि मुझे 12 बजे सोना ही है। अगर मैं कुछ अच्छी तरह से कोई पढ़ाई करता हूँ या कोई व्हाट्सएप पे मैसेजिंग कर रहा हूँ या कोई फिल्म देख रहा हूँ। अरे फिल्म भी देखना जरूरी है दिमाग की शांति के लिए। पूरे दिन मैं थका हुआ हूँ तो मुझे भी आई नीड सम एंटरटेनमेंट। तो ऐसा जरूरी है कि 12 बजे मेरे कोई, मैं अलग से मतलब जीता हूँ। 1 बजे भी सो जाता हूँ, 1:30 बजे सो जाता हूँ। सुबह उठने के लिए मेरा कोई टाइम नहीं है। अगर अभी आज हम एपिसोड शूट कर रहे हैं तो मुझे कहीं सुबह 7:30 बजे पार्टी में जाना था, वैलेंटाइन पार्टी में, तो फिर मैं 6:45 को उठ गया। हाँ, उस वक्त थोड़ा तकलीफ होती है क्योंकि रात को लेट सो गए और दिन में जल्दी उठ गए तो वो थकान लगेगी, लेकिन फिर जीवन के प्रति क्या उत्साह। क्योंकि वो पार्टी में नहीं जाऊंगा तो मैं 200 लोगों से मिल नहीं पाऊंगा, तो आई एम द लूजर। वो लूजर नहीं था जिन्होंने बुलाया था। गया, वैलेंटाइन डे की सेलिब्रेशन की, मैरिज एनिवर्सरी किसी की, उनके साथ सेलिब्रेट किया, नाश्ता किया। इसके बाद एक कॉलेज का फंक्शन था उसमें गया। इसके बाद एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्क्लेव था उसमें गया, और उसके के बाद अभी तुम्हारे साथ बैठा हूं। तो ये बैलेंसिंग ऐसे होता है। इस बीच बीच में धंधे का काम भी कर लेता हूं। अगर ये प्रोफेशनल हम पॉडकास्ट नहीं कर रहे तो हमारे पास प्रोफेशनल पॉडकास्ट करने के लिए भी टाइम होता है, वो बीच में से ही निकलता है। तो दिस इज द वे यू शुड लिव द लाइफ। और रात को घर जाता हूं। आधे दिन तो मैं डिनर लंच यहाँ करता नहीं हूं, मैं लंच घर पे नहीं करता हूं, लेकिन डिनर कोशिश करता हूं घर पे। लेकिन आधा दिन तो पार्टी होती है, शादी में जाना होता है, कहीं दोस्त लोग बुलाते हैं, चलो वो भी हो गया। अब हो गया रात को 10 बज गए। अब बीवी साथ में हो, सबसे पहली चॉइस होती है कि बीवी को साथ में रखो। कोई भी अच्छी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जाओ या शादी में जाओ, तभी आपकी एक इमेज बढ़ती है कि अरे ये तो फैमिली मैन है। एक बात। फिर अगर उनके साथ में नहीं है, मेरे को प्रोफेशनली कहीं पे जाना है, 10 बजे के बाद भी हम लोग रोज 40 साल से मैं और मेरी बीवी रात को घूमने के लिए जाते हैं। पहले 2 व्हीलर था तो 2 व्हीलर पे जाते थे, अब 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर पे जाते हैं, लेकिन जाते जरूर हैं। और उस वक्त जब हम आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बिताते हैं, दैट इज फैमिली टाइम। मेरा फैमिली बहुत छोटा है, हम 5 ही लोग हैं, लेकिन वो हमारी जो पोती है, वो पोती के लिए एक स्पेशल टाइम होता है। लेकिन पोती को दादा के साथ खेलने के लिए 1 घंटे की जरूरत नहीं है, वो 10 मिनट में भी खेल के खुश हो सकती है, और हमें भी 10 मिनट में अपने आप को खुश करना है उनके साथ खेल के। तो बैलेंसिंग ऑफ टाइम इज अ सक्सेस ऑफ लाइफ।
ओके, अब ये तीन चीज़ें हैं, पैसा, पावर और पोजीशन। अगर ये चीज़ें आपने अगर लूज़ कर दी इस टाइम पे, तो ऐसा कौन सा पहला स्टेप लोगे आप, या फिर कौन सी ऐसी एक्टिविटी करोगे कि उसको रिस्टोर कर सको और लाइफ को फिर से चालू कर सको? पैसा, पावर और पोजीशन, उन तीनों में से मैं किसी का यूटिलाइज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अच्छे कर्म करोगे, पैसा भी मिलेगा, पावर भी और आ सकता है, और पावर रहेगा तो पोजीशन अपने आप खड़ी हो जाएगी। तो जो कर रहे हो अच्छी तरह से करो, एक्सेलेंस पे काम करो, और जितना एक्सेलेंस पे काम करोगे इतना अच्छा पाओगे। तो मेरे लिए अभी ना तो पैसा मायना रखता है, ना तो पोजीशन मायना रखती है, ना तो पावर मायना रखता है। काम करो, ये सब अपने आप आएगा। व्हाट इज योर हैबिट, स्किल और माइंडसेट जो आपका, जो भी आज तक कुछ फेलियर हुआ हो, या फिर आपका कोई ऐसा पॉइंट आया हो जहाँ पे आप इतने पोजीशन पे नहीं रहे जिस पे आप पहले थे, तो वो मोमेंट ने आपको ऐसा क्या सिखाया, कोई ऐसी हैबिट, स्किल या फिर माइंडसेट आपको बिल्ड करवाया कि मेरे को ये एक सोच दिमाग में रखनी पड़ेगी, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये मेरे लिए सही रहेगा? पहली बात, डी फोकस मत हो। फोकस की बात मैंने पहले ही बता दी है। जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करो। हम अगर 4 बिजनेस एक साथ करने जाएंगे, एक साथ 10 काम करने जाएंगे तो नहीं होगा। तो पहली बात, जीवन में अपने डी फोकस कभी मत होना। दूसरा, ब्याज के विष चक्र में कभी नहीं पड़ना। जितनी अपनी चद्दर लंबी हो इतना ही हमें अपने पाँव लंबे करनी है, जितना हमारा पाँव। अगर हमने जीवन में, ऐसा नहीं होता है ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ऐसे दीवा स्वप्न में मत जाओ। वास्तविकता की दुनिया में रहो, कैलकुलेटिव रहो। अगर आप कोई चक्कर में पड़ गए हो, ब्याज के विष चक्र में, तो कहीं पे स्टॉप हो जाओ। अगर स्टॉप नहीं होगे तो और गिरोगे। और ये मैंने गलती की है, लेकिन इस गलती करने के बाद मैं ये नतीजे पर पहुंचा हूं कि इतनी इतनी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, और पैसे को, धंधे को अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करो। उसको जीवन का आनंद को समतोलन करना सीखो। काम को हमारा आनंद के रूप में लेना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है, या तो अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है फिर भी मुझे ये कोशिश करनी चाहिए कि ये काम मुझे अच्छा होने लगे, तभी ये हो पाएगा। तो लोगों को मैं यही संदेशा देता हूं कि फोकस से काम करो, अपनी चद्दर जितनी लंबी इतना ही पाँव फैलाओ, ब्याज के विष चक्र में मत पड़ो, लोन के चक्कर में हो सके तो न पड़ो, और अगर लोन के चक्कर में पड़े हो तो इतना इंटरेस्ट रेट ही जो अपने आप को कमा के दे सके। कोई भी बिजनेस 18% से ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा, और रातों रात जो लोग करोड़पति बन जाते हैं उनका नसीब होता है, उनको कुछ ऐसी जादुई लकड़ी उनके हाथ में आ जाती है कि बन जाते हैं। लेकिन फिर वो एवरेज बिजनेसमैन की बात करो तो कोई भी बिजनेस 18% से ज़्यादा कभी भी नहीं देगा। तो 18% से अगर ज़्यादा ब्याज जब देने लगोगे तब समझ लेना कि आप डूबोगे। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। और जो चीज़ हमें आती नहीं है ना, उनको करने की कोशिश मत करो। शेयर बाजार में अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो फिर मैं खुद ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं किसी और को मेरा पैसा दे दूंगा। दैट इज द मोस्ट आइडियल एंड एडवाइजेबल थिंग ऑफ द लाइफ। फिर मैं पूरा दिन बैठे रहूं ट्रेडिंग के पीछे, भाव का उतार चढ़ाव देखते रहूंगा, और इसके हिसाब से हम जीना पसंद करोगे तो ऐसा ही होगा कि जब मैं ये सोचूंगा कि बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तब वो गिरेगा, और जब मुझे लगेगा ये गिर रहा है, मैं अगर एंटर होता वो बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास वो स्टडी ना हो तो उसकी कोशिश मत करो। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन ग्रोथ ऑफ सूरत, कि आने वाले सालों में सूरत का क्या ग्रोथ होगा? सी, द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड सूरत है। आने वाले 50 साल, 10 साल की बात करो, 10 साल हमारे हैं। क्योंकि जो शहर में पूरे देश के 26 स्टेट के लोग रहते हैं, जो स्टेट 5 लाख करीबन 30 साल पहले थे, वो 5 लाख में से 85 लाख का बन सकता है। मेट्रो सिटी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो से 1994 में डर्टीएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड से क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है। जो शहर की तापी नदी ऐसी हैं जिनमें जितने भी लोग बाहर से आते हैं वो समाने की कोशिश करते हैं, समा जाते हैं। जैसे दूध में शक्कर मिलता है, ऐसे जितने भी बाहर के लोग आते हैं वो यहाँ पर समा जाते हैं। मूल सुरती, ओरिजिनल सुरती किसी को धोखा नहीं देता, किसी की ईर्ष्या नहीं करता है। तो ऐसे शहर में अगर आप मेहनत करोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो आने वाला 10 साल नहीं, आने वाला 50 साल इस शहर का है। और इस शहर के पास
भौगोलिक परिस्थिति इतनी बढ़िया है कि ट्रैफिक कभी जाम ही नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप ट्रैफिक जाम हो गए तो कहीं ना कहीं तो आपको ऐसी लेन मिल जाएगी कि वहां पर घुस के आप आगे बढ़ सकोगे। यहाँ कभी देखा है कि स्टकअप हो गए 3 घंटा 4 घंटा? इस शहर में एक छेड़े से दूसरे छेड़े तक जाने के लिए करीबन 30-40 मिनट से और ज़्यादा नहीं चाहिए। पहले तो वो इससे भी कम हुआ करता था, लेकिन अब शहर बढ़ गया है। फ्लाईओवर ब्रिजेस इतने हैं, द हाईएस्ट परसेंटेज इन द गुजरात। इतने फ्लाईओवर ब्रिजेस करीबन 130 से ज़्यादा वो कहीं पे नहीं है। तो ऐसे शहर में अगर रहोगे तो तक ही तक है। आप हजीरा पट्टी देख लो, इतनी मल्टीनेशनल कंपनी है, और मल्टीनेशनल कंपनी चाहे बड़ा काम करती हो, लेकिन उनमें काम करने वाले, उनमें से जो आनुषंगिक उद्योग पर निर्भर होने वाले सब लोग तो सूरत के हैं। तो उनकी वजह से सूरत में रोजगारी बढ़ती है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है, पावर ऑफ परचेसिंग बढ़ती है। और इतनी शांति कहाँ मिलेगी? कितना प्रदूषण है हमारे शहर में? कम से कम प्रदूषण है, कम से कम वॉइस पोल्यूशन है, रास्ते एवरेज अच्छे हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। टोरेंट पावर हो या डीजीवीसी लो, कभी भी पावर नहीं जाता है। एक ज़माना था जो हमने एक दिन का स्टैगरिंग देखा है, कभी भी पावर जा सकता था, हम दोपहर को सो नहीं सकते थे। आज ऐसा वक्त नहीं है। हमारे रास्ते, हमारी ड्रेनेज सिस्टम, आज बड़े बड़े मेट्रो शहर में भी वो ड्रेनेज सिस्टम ओपन होती है, दिखती हैं। सूरत में कहीं पे भी आपको ड्रेनेज सिस्टम बाहर खुली नहीं दिखेंगे। अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है। ये सूरत है। मेरे ख्याल से सूरत में आने वाला हर बंदा जीरो अनएम्प्लॉयमेंट सिटी है। काम करना चाहता है तो उसको काम मिलने वाला ही है, और हर काम करने वाला बंदा कैसा इंक्रीमेंट कहाँ पर मिल रहा है वही ढूंढता है। और वो जमाना गया कि आप 15-20 हज़ार में लोगों को रखो और फिर वो पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए काम करे, वो जमाना गया। यू शुड थिंक नाउ ग्लोबली। और फिर जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती है ना, कि अपनी कैपेसिटी, अगर मैं जानता हूं कि तेरी कैपेसिटी को, तेरी जो कैपेसिटी उसमें 50,000 से ज़्यादा तेरे को पगार मुझे नहीं देना चाहिए, तो मैं 75,000 दूंगा ताकि तू मेरे साथ जुड़ा रहे। क्योंकि अगर एक बंदा 5 साल मेहनत की, उसके पीछे हमने काम ट्रेनिंग की, हमारे अवर्स लगाए, और तुम छोड़ के चले जाओगे, फिर दूसरा बंदा को लाओ, फिर उसको ट्रेन करो, फिर वो उसको प्रैक्टिकली अमल में लाओ, वो सब करते करते इतना वक्त निकल जाता है। इसकी जगह तेरी कैपेसिटी 50 की, मैं तेरे को 75 देता, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये सूरत है। Can you share a valuable lesson or piece of advice that has contributed to your success? कोई एक ऐसी लाइन, कोई एक ऐसा valuable lesson जो आपको आपकी इधर सक्सेस तक पहुंचने में मदद की है? सबको ગુજરાતીમાં કહું તો બધાને જ કંઈ ને કંઈ અપેક્ષા હોય તે અપેક્ષા સંતોષવાની કોશિશ કરો. કારણ કે કોઈ એક માણસ તમારી પાસે કામ કરવા માટે આવે છે, કરાવવા માટે, એ તમારા અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરે છે, અને જીવનમાં અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરવા જેટલી મોટી ઘટના બીજી કોઈ નથી. ચેમ્બરનો પ્રમુખ છું તો લોકોને અપેક્ષા હોય ને કે નિખિલભાઈ મદદ કરે મારા પોતાના બિઝનેસના ડેવલપમેન્ટ માટે. એ જો હું કરીશ જ નહીં તો આ ચેમ્બરના પ્રમુખ બનેલો કામનો છું. હું સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટીમાં છું, શૈક્ષણિક સંસ્થા છે, મારી પોતાની યુનિવર્સિટી છે, હું એક કોલેજનો ચેરમેન છું. તો લોકોને એડમિશનની અપેક્ષા હોય, કરી શકું ન કરી શકું એ 2 નંબરની વાત છે. પણ જે માણસ અપેક્ષા લઈને આવે છે તેની અપેક્ષાને હું જો કોશિશ જ નહીં કરીશ તો એ સંતોષી કેવી રીતે શકીશ? એ હું કરું છું, અને એટલે લોકો મને મળવાનું પસંદ કરે છે, અને હું લોકોને મળવાનું પસંદ કરું છું. હું તમામના ફોન ઉઠાવું છું, મિસ કોલમાં જાય તો ફરી પાછા ફોન કરું છું. આ લેસન એ જ મારો જીવન મંત્ર છે. What is the story behind the tag you got, the uncrowned king of Surat? वो तो सर ये तो તમે શબ્દ આપ્યો છે, મેં ક્યારે એવું નથી કીધું કે હું અનક્રાઉન્ડ કિંગ ઓફ ધ સુરત છું. आपको जो लोगों ने टैग दिया था बहुत पहले और अभी भी शायद हाँ, दिया वो ये इसलिए था कि मैं 20 साल मैंने एक चक्री शासन किया था इस शहर पे, 1905 से लेकर 2015 तक, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल सूरत चलाता था, और दिल से चलाता था. मेरी हर न्यूज़ परफेक्ट होती थी, सतत निरंतर मैं सबको लोगों को साथ में रख के काम करता था. तब वो जमाना में मेरी विश्वसनीयता थी, आज भी है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो विश्वसनीयता है मैंने हासिल की थी, क्योंकि मैं जो बोलता था वही लोग मानते थे, और मैं यही बताता था जो हो रहा था. मैंने कभी
उसमें एग्जागरेशन करने की कोशिश नहीं की। कभी मैंने येलो जर्नलिज्म नहीं किया, कभी किसी को डराने का धमकाने का काम नहीं किया। जो मुझे लगा और जो हो रहा है वही मैंने लोगों को दिखाया, इसलिए मेरी विश्वसनीयता का अंक बहुत बढ़ गया। और इसीलिए सरकार भी मैं जो कहती थी वही करते थे। अगर मैं चाहता कि ये मर्डर हुआ है और मर्डर के पीछे जो भी कोई है इसके प्रति थू थू कराना मेरा काम है, तो मैं ऐसी भाषा बोलता था एक जमाने में कि पूरा शहर मेरे साथ आ जाता था। जो मैं कहता था वही लोग करते थे। ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे लोगों ने देखे हैं। इसीलिए किसी ने मेरे को बोल दिया अनक्राउंड किंग ऑफ द सिटी ऑफ सूरत। और सच में ये जमाना था। जब मैं होटल में दाखिल होता था तो 25 टेबल में से 20 टेबल वाले कहते थे ये निखिल मद्रासी आया। बच्चे सिग्नेचर करवाते थे एक जमाने में, और मुझे आनंद होता था क्योंकि मैं काम कर रहा था। और काम के प्रति का लगाव अगर मैं लोगों के साथ जोड़कर काम करूं तो और अच्छा रहेगा। मैं झुपड़पट्टी में भी जाता था और मैं 5 स्टार होटल में भी जाता था। इंटरव्यू छोटे से छोटे लोगों का करता था तो बड़े के बड़े लोगों का भी करता हूं। कोई पॉलिटिशियन अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आज तक ऐसा नहीं है जिसका मैंने इंटरव्यू नहीं किया। कपिल देव से लेकर छोटा से छोटा क्रिकेटर कहां तक महेंद्र सिंह धोनी तक, बाद में मैंने चैनल छोड़ दिया। ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं है जिसका मैंने इंटरव्यू नहीं किया हो। ऐसा कोई बड़ा उद्योगपति नहीं हो जिसके साथ मैंने बात नहीं की है। और बात करने के बाद लोग जब देखते हैं तो बोलेंगे ना कि इसकी पहुंच है, इसीलिए वो अनक्राउंड किंग वाला टैग मेरे पे लगा। लेकिन इसका अहम कभी नहीं किया। वो आप बोलते हैं अनक्राउंड किंग, मैं कभी नहीं बोला कि आई एम द अनक्राउंड किंग। मैं कभी ऐसे बात नहीं करता हूं, मैं हमेशा ऐसे बात करता हूं। ये नम्रता है, और नम्रता कोई अहम नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है, धर्म है। अब अगर ये पॉडकास्ट सूरत में सब लोग देख रहे हो तो आप सूरत वासियों को ऐसी कौन सी 3 से 4 चीज़ें कहना चाहोगे कि वो कैसे जिए, सूरत कैसा शहर है, और आप उनको ऐसा क्या कन्वे करना चाहोगे एक मैसेज? एक तो जो धरती का नमक खाया उसको कभी भी धोखा मत दो, क्योंकि वो तो पिक्चर में भी आता है। हाँ। कि हरामखोर नमक हराम, जिनका तूने रोटी खाया है, जिनका खाना खाया उसी की थाली में तू छेद कर रहा है। तो इस शहर को वफादार रहो। ये प्लेग की बात है। जब सो कॉल्ड प्लेग आया था सब लोग छोड़ के भाग रहे थे, तब मेरे मोहल्ले वाले ने बोला कि निखिल भाई जब तक तुम यहाँ हो हम लोग यहाँ रहेंगे, तुम भागोगे तो हम भागेंगे। मैंने बोला मेरा भागने का सवाल ही नहीं है। जो धरती पर मैं पैदा हुआ हूँ वो धरती के प्रति मेरी वफादारी है। अगर मरना है तो जीवन में एक ही बार मरना है। मैं जैन धर्मी हूँ, मैं सिद्धांतों में मानता हूँ, मैं कर्म के सिद्धांत में मानता हूँ। जीवन में मरना एक ही बार है। अब मैं सो कॉल्ड प्लेग से मरूं या कोरोना से मरूं या ऐसे ही चलते चलते किसी को ठोक दिया तो भी मरने वाला हूं। तो इस धरती को छे करके मैं अगर भाग जाता हूं तो मेरे साथ भी कितने लोग भागेंगे? ये धरती का ऋण कौन चुकाएगा? तो ये संदेशा अपनी धरती का ऋण चुकाने के लिए यहीं पे कायम रहो। दूसरा, ये धरती के विकास के लिए हमेशा सोचो कि इसको मैं कितना डेवलप कर सकता हूं। सुपर सर्वेक्षण लीग में फर्स्ट आना एक बात है, लेकिन उसको कंटिन्यूटी में रखना ये दूसरी बात है। ये धर्म नागरिक धर्म है, वो मैं तो बजाता ही हूँ, लेकिन लोगों को भी मैं ऐसा उपदेश देता हूँ कि आप भी करो। ये एक साल का टैग नहीं चाहिए मुझे जीवन भर ये टैग चाहिए। और पहले भी मैंने बोला कि इस शहर की मस्ती को एंजॉय करो। ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ टू बी एंजॉय। भगवान ने इसीलिए हमें यहाँ जन्म दिया है, उसकी मजा लो। सूरत में दारू नहीं मिलता है, बहुत अच्छी बात है। कौन बोलता है कि दारू पीने से ही जीवन में मजा आता है? अरे बहुत अच्छी बात है कि दारू नहीं मिल रहा है, ताकि हमारा समाज जीवन, हमारा आर्थिक जीवन उन लोगों के जैसे नहीं है। हाँ, चाहे हमारे पास एंटरटेनमेंट कम हो तो एंटरटेनमेंट नए रास्ते ढूंढो। फिल्म देखो, नाटक देखो, संगीत की पार्टियां करें। अरे लोगों से मिलो, सब मिलकर मजा करो, मस्ती करो। अपने समवयस्कों के साथ रात को करो, जाके जूस सेंटर में जाओ, होटल में जाओ, खाना खाओ। सारा 3-3, 4-4 बजे तक अपने यहाँ तो अभी खाना मिलता है, और जहाँ से खाना बंद होता है वहाँ सुबह मॉर्निंग की कहीं और होटल खुल जाती है। अगर ताकत है तो वहाँ जाके फिर और मस्ती करो। तो सूरत एक ऐसा शहर है जिसे कानून देखो, अपना कायदा कानून, लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति कितनी अच्छी है। रात को घूमते हमें कभी डर नहीं लगता है, न तो लड़कियों को डर लगता है, न तो हमें डर लगता है। हमारे यहाँ नवरात्रि में कहीं दंगा नहीं होता है। कोई चढ़ने वाला होता है तो उसकी ऐसी धुलाई हो जाती है कि बात मत पूछो। तो इतनी अच्छी अगर लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति मिली हो,
जितने पॉलिटिशियंस कितने अच्छे हैं। आपने कभी देखा है कि हमारे पॉलिटिशियंस का किसी अंडरवर्ल्ड से कोई ताल्लुकात हो? सूरत के जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, मिनिस्टर्स हैं, कॉर्पोरेटर हैं, तो ऐसे अच्छे शहरों में अच्छे लोग बनेंगे लीडर, और अच्छे लीडर बनोगे तो अच्छा एटमॉस्फेयर खड़ा होगा। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ों का फायदा उठाओ। सूरत से बाहर जाने की कोशिश मत करो। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जहाँ पर ट्रांसफर होकर यहाँ आते हैं ना, जब रिटायर्ड होते हैं ना, तो बोलते हैं यार सूरत में हम रहेंगे, कि इतनी पीसफुल जनता आपको कहीं पे मिलेगी, और मीनिंगफुल पीपल, इवेंटफुल पीपल। यहाँ लोग होली भी मनाते हैं, धुलेटी मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, कौन सा त्योहार हम नहीं मनाते हैं? हमारे यहाँ जन्माष्टमी भी लोग खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, मजा करते हैं। मैं पत्ते का तरफेंड नहीं कर रहा हूँ, Yes. जुगाड़ का तो मैं विरोधी हूँ, लेकिन है तो हर एटमॉस्फेयर, हर एक चीज। और लंबा आराम कोई नहीं करता है सूरत में। पहले दिवाली बहुत लंबी चलती थी, अब कम होने लगी है। अब देखो क्रिसमस पूरे वर्ल्ड में कितने दिन तक चलता है, अपने यहाँ वो त्योहार इतना अभी सीमित हो गया है। और लोग घूमने कितने जाते हैं सूरत के बाहर। ऐसा है, घूमो, और घूमना चाहिए। हम उम्र के लिए अगर राह देखेंगे, इंतजार करेंगे, खास करके सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं, हम जब रिटायर होंगे तब हम यात्रा करेंगे। अरे भाई, तब तक तेरे पाँव खत्म हो जाएंगे, तब तक कोरोना आ जाएगा, तू न का इधर अभी का है, अभी कब नहीं बचेगा तू। उसके लिए वेट मत करो, जहां जो अपॉर्चुनिटी मिली उसका फायदा उठाओ। ये मेरा सभी सूरतवासियों को संदेश है। इसी के साथ थैंक यू सो मच निखिल अंकल। थैंक यू जहान, आपका बहुत Very बहुत good शुक्रिया। podcast. इतने यंग एंटरप्रेन्योर हो आप यंग बने रहो, और ऐसे मेरे जैसे लोगों के विचारों के साथ आप आगे बढ़ते रहो। यही शुभकामना। धन्यवाद। थैंक यू।